Good morning, dear students. Uh, in the last classes, we have discussed about the basics of object-oriented programming. Okay, so basically, we discussed about what is abstraction, encapsulation, inheritance. Then we have discussed about modularity and all. Okay, so these are the very important topics regarding object-oriented programming. So let us quickly revise these topics again. Okay, so abstraction, it was what? Abstraction, the way we used to find out the essential feature of a class is known as abstraction, but remain hidden the background details. मतलब हम लोग अगर देखा जाए तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था ऑफ कार। ठीक है, सपोज मैंने आप लोगों को बोला है कि एक क्लास क्रिएट करो ऑफ कार। ओके, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, first thing you'll go and find out what are the information available for car. Okay, so let's say a car have wheel, a car have staircase, brake. Okay, car have seat cover, so on so on. There are many information. Okay, clutch, then accelerator. Okay, so these are the information you will gather. ये जो information gather कर रहा है for a class car, this process is known as what? Abstraction. Clear? Okay. अब देखो एनकैप्सुलेशन क्या है। देखो कार में हम लोगों ने बेसिकली क्या वहां पे हम जो जो इंफॉर्मेशन हुआ हुआ कलेक्ट किया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बोले तो देयर आर ब्रेक्स, देयर आर एक्सेलरेटर, देयर आर क्लच। ओके, बट यू सी these are information, but suppose car is moving and when we apply this brake, then what will happen? car stop हो जाएगा slowly. Okay, that means what? The moment we press, some action happened. Yeah, some action happened. So this action actually we can say the member function. You can say. Okay. So in encapsulation, what we will do, जो हम लोगों ने information gather किया है, okay, the information like it can be data member, it can be member function. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाटा मेंबर है एंड मेंबर फंक्शन है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक ही ब्लॉक के अंदर हम लोग करेंगे, यूनिक करेंगे। ठीक है, सपोज व्हाट यू कैन से वी विल रैप आउट द इंफॉर्मेशन डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन विद इन एन यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने एक प्रोग्रामिंग के हिसाब से प्रोग्रामिंग दिखाया था तुम लोगों को कि वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, एक क्लास क्रिएट किया था, क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि एक क्लास के अंदर 3 सेक्शन होता है, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ओके, तो इन इनसाइड द प्राइवेट सेक्शन बेसिकली वी विश टू डिफाइन द मेंबर डाटा मेंबर्स। ओके, but it does not mean that we have to declare only data member inside the private section. We can declare both data member and member function. Okay, so बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन प्राइवेट सेक्शन एंड पब्लिक सेक्शन। अब बात ये होता है कि जब हम लोग कुछ डाटा प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करता है या डिफाइन करता है तो उसका क्या होता है। ठीक है, व्हेन वी डिफाइन सम डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनसाइड प्राइवेट सेक्शन, सो दोज डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन विल बी रिमेन hidden from outside of the class. Okay, and when we define data member and member function uh, under public section, it means that this data member and member function will be available publicly. That means from outside class also you can easily access, easily it is visible. I hope it is clear. Okay, so now in today's class I am going to declare this today we are going to learn about how we can define a member function. Okay, how we can define a member function. So, for defining a member function we can define it in two ways. Okay, one is we can define the member function within the class itself, and second is we can define the member function outside the class.
ओके। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने मेंबर फंक्शन दो लिया था, एक था रीड स्टूडेंट और एक था डिस्प्ले स्टूडेंट। तो उसका डिफाइन मतलब क्या है, उसका जो लॉजिक हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। तो व्हाट वी डिड इन लास्ट प्रोग्रामिंग, जो हम लोगों ने रीड फंक्शन के लिए जो हम लोगों ने डिफाइन किया था वो क्लास के अंदर ही हम लोगों ने कर दिया था। इन टुडे वी आर गोइंग टू सी बोथ द केसेस, ठीक है। जब हम लोग आउटसाइड द क्लास डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा। When we define the member function outside the class, then we have to use a special operator, scope resolution operator. Okay. Now let us see this with the help of a programming, that how we can define a member function inside a class and outside of a class. Okay, we'll discuss with the help of a programming. So let's run our code blocks. Uh, okay, so we'll create a new project here. See, in this, we are going to do a programming uh, to find the area of a right angle triangle. So all of us we know that what is the area of a right angle triangle, half into base into height. Is it clear? So हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे of triangle, ठीक है। For now we'll focus on right angle triangle only. Okay. So first thing, before we proceed with creating a class triangle, first thing is what we have to gather the information of triangle. तो ट्रायंगल का हम लोग को इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए। देखो, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग को फर्स्ट थिंग चाहिए कि उसका क्या क्या होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, हाइट होता है एंड बेस होता है, ठीक है। एंड देन find the area we have to define a class. Okay, so let's do it. It's very simple programming. We'll come proceed with this example only. Okay, so we are going to create a class. Suppose class triangle, right angle triangle. Okay, r triangle. Clear? This r triangle is a user defined name, ठीक है। जनरली क्लास नेम क्या होता है, यूजर डिफाइंड नाम होता है, ये अपने हिसाब से दे सकता है, ठीक है। Okay, so our class body starts. Okay, under class we have basically three sections, but we are going to use here two sections. First one is we are going to make the information private. Information means we have what we can say, uh, we can say height and weight, right? So let's say we have height, we'll make it as float. Okay, float height, and we'll make uh, the base also as floating point variable only. Okay, so these two are the variable we have declared. Now next thing is we have to uh, define the member function. So see how many member function we required in this programming. Why? See, we have declared two variable, height and base. Okay, so we have to read this height and base value from the user. So that means what? For reading these values, to read the values for these variables, we have to define a member function. Okay, and that should be inside the public. Basically, we used to define inside the public section. Okay, so public के अंदर हम लोग क्या करेंगे, first to read the information we will create a member function of type void. Why void? Because this program will not return any value. Okay, so void, suppose read r triangle. Okay,
इसका पर्पस क्या होगा, ही विल रीड द हाइट एंड बेस, मतलब हाइट क्या होगा, बेस क्या होगा, इन दिस फंक्शन वी आर गोइंग टू रीड इट. ओके, सो see out here we'll say enter the height. ओके, सो हम लोग रीड करेंगे इसको सी इन height. Okay, next again we are going to read the base as well, so enter the base. Okay, clear? So yes, done. Now let's move ahead with the area. That means how we are going to find the area of this triangle. So see why I have chosen this example, because it is very simple, and since we are in the beginning of object oriented programming, so it is better to take some simple programming only, then in on next class onwards will go to complex level slowly. Okay, so in this chapter basically we have to understand programming anyhow. Okay, देखो क्लास में होने से हम अभी तक मतलब प्रैक्टिकल करने स्टार्ट दिया होता, अभी क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू चांस टू डू प्रैक्टिकल, सो दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड I will demonstrate with the help of practical example. So I hope you will understand. Okay, so let's move with the next. See here again we will find the area. Also we are going to create a member function, suppose area. ओके, एरिया, एंड ये जो फंक्शन है इसका टाइप भी मैंने वॉइड रखा है, क्योंकि इसका भी हम लोगों ने क्या करेंगे, वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे. क्या यू कैन, इफ यू वांट यू कैन मेक इट, I'll show you both the cases. ओके, सो यहाँ पे देखो एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या है, हम लोगों के पास हाइट हो गया, हम लोग के पास बेस हो गया है. अब क्या चाहिए, कीप द रिजल्ट वी नीड अनदर वेरिएबल से एरिया. ये अब क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, सपोज फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, तो हाफ का वैल्यू क्या है 0.5, सो 0.5 इंटू हाइट हम लोगों ने रीड किया है. ओके, इंटू बेस. Yes, this is the formula. Now we have to display it, since we are not going to return the value, so we'll display it here itself. See out the area will be, yes, we'll write like this. Okay, now the thing is, till now we have not created the object for this class. तो हम लोग का क्लास कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेके हम लोग क्लास स्टार्ट हो गया है यहाँ तक. ठीक है, अब देखो ये जो हम लोगों ने सीखा था एनकैप्सुलेशन, यहाँ पे देखो ये क्या है, डाटा मेंबर, ये दोनों क्या है, मेंबर फंक्शन. अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया है, एक ही यूनिट के अंदर बाइंड कर दिया है. इसी को हम लोग बोलेंगे एनकैप्सुलेशन. ये एब्स्ट्रैक्शन क्या था, हम लोगों ने पता फाइंड आउट किया है कि एक ट्राइंगल का हाइट होता है, बेस होता है, and to read information we can read the triangle, and to find we need to, एरिया का क्या होता है बेसिकली, सॉरी ट्राइंगल का क्या होता है, एरिया होता है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, फाइंडिंग आउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लास इज नोन एज व्हाट, एब्स्ट्रैक्शन. ओके, नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. तो हाउ इज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द क्लास. तो इसका नाम क्या है, आर ट्रायंगल. ओके, विल कॉपी इट, आर ट्रायंगल. Okay, आर ट्रायंगल. Next is we have to define the object name. See, this object name is again user defined name, but to define the object we have to write the class name first, because we are outside the class. Okay, so let's say
OBJ. I have created a name OBJ for better understanding. Okay. Now what we have to do, we have to call this read function, because first thing is what, हम लोग पहले क्या करेंगे, हाइट का वैल्यू लेंगे, फिर बेस का वैल्यू लेंगे, और वो कहाँ पे है, वो read ट्रायंगल में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, obj डॉट read ट्रायंगल, यस, ये हो गया। अब जब कंपाइलर यहाँ पे आएगा तो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद हाइट का वैल्यू लेगा फ्रॉम द यूजर, एंड सेम वे बेस का भी वैल्यू लेगा फ्रॉम द यूजर। ओके, सेकंड थिंग इज हम लोग क्या करना, ये वैल्यू रीड हो गया है। अब नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। उसके लिए हम लोगों को फिर से कॉल करना पड़ेगा, किसको, एरिया कहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, एरिया कैलकुलेट हो रहा है इन द फंक्शन नेम एरिया। अभी हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स का हेल्प लेके इसको कॉल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग कॉल, obj डॉट एरिया। ओके, नाउ डन। सी, यहाँ पे हम लोगों ने टाइप लिया है void, तो वैल्यू रिटर्न नहीं किया है, यहाँ पे भी लिया है, रिटर्न नहीं किया है। आई होप दिस इज क्लियर। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ओके, सॉरी, okay, let's run this program. Okay, so here they're asking enter the height. So height, suppose I'm giving here 3.5. Okay, and then base, suppose I'm taking 2.0. okay, you can see here the area will be 3.5. so you find out 3.5 into 2 into 0.5. okay, into 0.5 you will get 3.5 only. so ये जो हम लोगों ने एरिया निकाला है, अब देखो ये फर्स्ट विल कम टू दिस फंक्शन। यहाँ पे हम लोगों ने टाइप लिया था void। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका टाइप ले लेंगे हम लोग फ्लोट। जब यहाँ पे हम लोग फ्लोट लेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करना पड़ेगा, कहाँ पे, जहां से कॉल कर रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, वो इज वेरी सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इन सबको हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न, we can write like this, yes, and we will comment this person, ठीक है। अब वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ पे आएगा। जब वैल्यू यहाँ पे आएगा तो इसको भी किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा, है कि नहीं। सो हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट, पहले हम लोगों ने क्या किया था, ARE में रखा था इक्वल टू। अब क्या होगा, हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ARE ऑफ टाइप फ्लोट, ठीक है। इक्वल टू हम लोगों ने लिखा है ऑब्जेक्ट obj डॉट एरिया, मतलब यहाँ का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न होके यहाँ पे आएगा, एंड दैट वैल्यू विल बी असाइन टू ARE। okay, now you display it, see out from the main itself we can display। okay, we'll copy from here। okay, done। now save it, you run it, same thing will ask, you see here, suppose 2 3, you can say 3 here, here will be 3 here। so this is how we wish to run a program। okay, now आज का टॉपिक जो था कि हाउ वी कैन डिफाइन ए मेंबर फंक्शन। ओके, तो मेंबर फंक्शन बेसिकली वी कैन डिफाइन इनसाइड ऑफ ए क्लास एंड आउटसाइड ऑफ ए क्लास। तो ये जो हम लोगों ने डिफाइन किया है, डिफाइन मतलब दिस इज द डिफिनेशन, ठीक है। इफ यू रिमेंबर इन फंक्शन चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। ओके, दिस इज अगेन फंक्शन डेफिनेशन। नाउ ये क्या है, दिस फंक्शन वी हैव डिफाइंड इनसाइड द क्लास, बिकॉज ये क्लास स्टार्ट हुआ है यहाँ पे एंड क्लास क्लोज हुआ है यहाँ पे, क्लियर। अब
इसको अगर हम लोग डिक्लेयर करेंगे सपोज यहाँ पे, डिफाइन करेंगे सपोज आउटसाइड द क्लास, तो क्या होगा, उसको हम लोग कैसे करेंगे उसको, for doing this, first we have to declare this class inside the class. Okay, will since we have done already, so uh, will not erase it, we'll just copy from there itself. So suppose ये बाद में करेंगे, तो ये जो क्लास है अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे आउटसाइड द क्लास। तो क्लास यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके बाद कैसे करेंगे, इट इज, देखो ये जो मेंबर डाटा मेंबर फंक्शन है इसका टाइप क्या है, void। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वो मेंबर फंक्शन का टाइप लिखेंगे, void कौन सा क्लास का है ये डाटा मेंबर, क्लास आर ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, मेंबर फंक्शन का डाटा टाइप क्लास नेम, ठीक है, फॉलोड बाय स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये क्यों, क्योंकि हम लोग ये जो फंक्शन है मेन से हम लोग उस अंदर से बाहर लेके आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेशल ऑपरेटर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, यस, कंट्रोल सी, यस, हो गया। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, सो हम लोग ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम लोगों ने डिफाइन किया था पूरा डेफिनेशन हम लोग वहां से लेके आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यस। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, you can cut, but we have to uh, declare this member function, okay। So for declaration we have to give a semicolon, okay। तो ये जो डिक्लेयर किया है हम लोगों ने मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास, इसको डिफाइन कहाँ पे किया है, आउटसाइड द क्लास। कहाँ पे, यहाँ पे। कैसे, दिस इज हाउ इज टू डिफाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन हम लोग डिफाइन करने जा रहा है आउटसाइड द मेन, उसका टाइप लिखेंगे, वो मेंबर फंक्शन कौन सा क्लास का बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे कि ये है आर ट्रायंगल का, तो हम लोग कौन सा क्लास का, तो ये क्लास हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको अंदर से बाहर लेके आ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देन फंक्शन नेम। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। व्हेन यू प्रैक्टिस इट विल बी ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन माइंड, ओके। उसके बाद सेम वे वी विल डू द फॉर द सेकंड वन। इसका टाइप क्या है, फ्लोट, सो विल राइट हियर फ्लोट, ओके। कौन सा क्लास का है, सेम आर ट्रायंगल, यस, ओके। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नाम क्या है, एरिया, यस, डन। स्टार्ट हियर, लॉजिक यहाँ पे क्या है खाली, ओके। तो यहाँ पे ये सब की जरूरत नहीं है अभी ब्लॉक की, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट डिफाइन डिक्लेयर करेंगे। इसका डेफिनेशन कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा आउटसाइड द क्लास, तो यू कैन सी हियर। तो ये हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था, क्लास स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, क्लोज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका दो मेंबर फंक्शन है, रीड आर ट्रायंगल एरिया, इसको खाली हम लोगों ने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, ठीक है। एंड इसका डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है आउटसाइड द class। कैसे, this is how we used to define the member function of a class outside the class। Hope it is clear to you all, okay। Now let's run this program, sorry again okay, so
Yes, you can see here, suppose 3 5, say 7.5. 3 height is suppose 3, base is suppose 5, so area will be 7.5. I hope this programming is clear to you all. Okay, so you go through it again and again if it is not clear to you. Okay, so today we are going to learn only programming. Okay, so based on this I'm going to give some assignment. Okay, I hope this is clear to you all. Okay, next one question might be in your mind that ये जो क्लास डिफाइन हम लोग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए क्लास कर रहे हैं, तो विच विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर आर्स. ओके, तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपका माइंड में. देखो, ये क्लास मेंबर फंक्शन डेफिनेशन हम लोग इनसाइड ऑफ ए क्लास एंड आउटसाइड ऑफ ए क्लास हम लोग कब करते हैं ये. ठीक है, फॉर स्मॉल क्लास प्रोग्राम we can define it inside of the class itself. It will be no harm. Okay, but we can write outside of the class also. Okay, so you try to make habit of writing this definition outside of the class. Why? Suppose हम लोग एक बहुत large class create कर रहे हैं. Suppose I ask you to create a class of our colleges. कॉलेजेस का क्या होता है, हम लोग कॉलेज का आज का नाम क्या होगा, कॉलेज. कॉलेज के अंदर वी हैव टीचिंग स्टाफ, वी हैव नॉन टीचिंग स्टाफ. ओके, सेम वे स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, सेकंड स्टूडेंट्स, और कैन से प्रेजेंट स्टूडेंट्स, देन ex students. So we have to create different functions. We have library also, laboratory also. Okay, so in that class we need so many member function. Okay, अब इतना सारा मेंबर फंक्शन अगर हम लोग क्लास के अंदर ही डिफाइन कर देंगे तो आवर क्लास विल बी वेरी लार्ज. दैट विल क्रिएट अस सम प्रॉब्लम. हाउ? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर टू आइडेंटिफाई. ओके, so that is why it is very good for large class to define the member function of the class outside of the class. Okay, so I hope this concept is clear to you all. Okay, the next classes we are going to see some more practical programmings. Okay, so which will be based on some our like what you can say geometric mathematics. From mathematics we can do some classes. Okay, so and so on. Okay, so just go through it. If you have any doubt you can call me directly. Okay, thank you very much.